Hi, welcome to Chai Tea Charcha. Today we have with us Shivani, who is an integrated dietitian and nutritionist. Shivani has helped thousands of people reach their health goals, be it PCOS, thyroid, blood pressure, blood sugar levels. Shivani has helped all of them. And today she is here with us to spill some tea on how to reach our health goals. So let's start. So, hi Shivani. Hello, hi Soumya, So good to have you here finally. and thank you so much for inviting me on your first podcast, that is Chai Tea Charcha. I really love this name. Thank you. It's my pleasure. I love tea, and I think before we start, we should do a Sure. yeah. Sure. Shivani, you look so beautiful today. And first time when I heard that you have so many years of experience, I was very shocked because you look very young. So, Thank you. how did your interest in health and fitness start? Like, So yeah, I am like into fitness and health of mine from years now. So after birth of both my pregnancy, like daughters, so I just started this journey because I have gained a lot of weight after my second daughter. I Okay. was in 80s, and there were like so many health issues coming to my body. मेरा neck cervical was so severe कि I cannot even मतलब hold my daughter. Oh, Like, उसको मैं पकड़ भी नहीं पाती थी, इतना मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था. Then I started looking for treatments. right. I went to different clinics, spine clinic and all, सब जगह गई. And then they told me कि you have to work on it through exercises and diet and all. So तब मुझे लगा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है, why should हाँ. I pay them, है ना? Right. They were asking for huge amount of money कि ये पैसा भी दो but करना आपको ही है. हाँ. So I was like नहीं, अभी कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा. That is something solution I need to find out. Then I started working on myself. I started proper workouts, proper dietary things. I Yeah. started reading lots of books. एंड बहुत सारा मेरा मतलब एक इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा कि मुझे एक होता है ना जुनून हो हाँ. गया कि नहीं, आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम कि आई कैन सर्वाइव लाइक दिस कि मैं 80 केजीज में हूँ और मतलब मैं अपने ही बेबी को उठा नहीं पा रही. तो ये लाइफ आई कैन नॉट एक्सेप्ट. पोस्ट प्रेगनेंसी वुमेन जो केसेस होते हैं उनमें ये सब में ये कॉमन प्रॉब्लम है. बच्चे के साथ आप बहुत ज़्यादा सारा टाइम बैठे रहते हो, आप फीडिंग के लिए बैठे रहते हो, रात रात भर जगते हो. सो उसमें आपका ये बैक का प्रॉब्लम, बैक पेन, True, सर्वाइकल true. पेन बहुत Yes. कॉमन है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से देम दैट डोंट एक्सेप्ट दिस सिचुएशन. जहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस ले आया हाँ. तो मतलब आप पूरी लाइफ उसी में फिर आप बिताने वाले हो. बट दैट इज़ Correct. नॉट गुड, दैट इज़ नॉट हेल्दी. यू कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ दिस और बहुत ईजी सॉल्यूशंस हैं. यू जस्ट नीड टू लुक आउट फॉर द राइट पाथ एंड राइट वे कि किस तरह से आप उस सिचुएशन में से निकलो. एंड स्लोली एंड स्टेडीली मैंने अपने आप को मतलब Right. ऐसे कोई टारगेट नहीं दिया था कि मुझे हाँ. 6 महीने में इतना होना है या मुझे 1 साल में ठीक होना है. इट टुक years, like 2-3 years to get back to my previous shape. Yeah. and मेरा पूरा हेल्थ ठीक होने के लिए. सो उस वजह से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ एंड नाउ हियर आई एम. एंड देन आई थॉट कि वाई शुड नॉट आई टेक इट एज माई प्रोफेशन. एंड मैं इतनी पैशनेट हूँ जिस चीज़ के बारे में, तो इसी तरह से मैं अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को भी हेल्प कर पाती हूँ और बहुत अच्छे से वो रिलेट कर पाती हूँ कि वो लोग भी उसी जर्नी से निकल रहे हैं जिसमें से मैंने एक टाइम पे आई वाज सफरिंग फ्रॉम. So this is how this started, and this is here I am. That's good, and it's going amazingly well, I must say, because so many 1,000+ transformations. Yeah. So, but ऐसा होता है क्या कि when somebody enrolls and you see something that sets them apart कि हाँ ये बंदा achieve कर लेगा transformation, something that, because you have seen so many successful transformations. So Yeah. what helps people achieve their health goals? Like one thing that you feel that is common amongst So all. I think that is all about your mindset. Right. So अगर आप एक mindset से आ रहे हो ना कि like people, many of my clients, they do come like कि let's do it, है ना, मतलब हाँ. चलो करके देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट की तरह कि क्या पता Right. कुछ हाँ. हो जाए. That mindset actually don't work. Yeah. सो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू अचीव इट. Right. कि दिस इज माई गोल, आई जस्ट नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, आई जस्ट नीड अ प्रॉपर आपका एक चैनलाइज प्रोसेस हाँ. होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्लान होना चाहिए
then actually you can achieve your goals. Yeah. बट अगर आप ऐसे ही बस मतलब हाँ. बैठे हैं कुर्सी पे, चलो एकदम कुछ से कर दिमाग लेते में हैं. कुछ कर लेते हैं, चलो हाँ. डाइटिशियन को फोन कर लेते हैं, चलो, वैसे नहीं होगा. बहुत Correct, सारे क्लाइंट्स correct. आते हैं, उनको लगता है सिर्फ मतलब आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया पे इतना मिसलीडिंग True. इन्फॉर्मेशन है दैट पीपल आर जस्ट लिसनिंग, क्योंकि 80% रोल तो डाइट का है, सो लेट्स एनरोल अंडर डाइटिशियन एंड दे डू नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. इवन Yeah. डाइट भी फॉलो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बाकी की भी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स. Yeah. सो दैट इज़ अ वेरी सैड पॉइंट कि आपको पूरा नॉलेज ही नहीं है जब आप मेरे पास Right. आ रहे हो, आप किस गोल से आ रहे हो, यू आर जस्ट कमिंग एंड यू नो स्टार्टिंग योर Yeah, जर्नी. true. सो आई रियली वांट, और जो मेरे क्लाइंट्स बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, हाँ. दे एक्चुअली फॉलो टू द टी, Yeah. यू नो, To the T. मतलब हाँ, टू द टी. सो मतलब दे डोंट गो हेयर एंड देयर कि हाँ. अगर मैंने उनको वो टाइम पे इतना ही बोला है उतना ही खाएंगे, हाँ, एक भी that बाइट is एक्स्ट्रा नहीं, important. एक भी बाइट कम नहीं. एंड सीरियसली दे गिव मी मैजिकल रिजल्ट्स एंड Oh. आई रियली फाउंड देम कि भाई ऐसे वाले पेशेंट्स आने, ऐसे क्लाइंट्स आने चाहिए मेरे हाँ. पास, कि जो मतलब यू नो those who can trust my process and they follow it properly. Yeah. So it's actually a process. It's a combination of so many factors. Right. When it comes to transformation, it's a big term. और बहुत सारे changes होते हैं आपकी बॉडी में. It is not like कि weight is the only thing which we are Yeah. going to focus on. Right. है ना? Absolutely. तो वो एक mindset आपका ऐसा होना चाहिए कि मुझे अपने अंदर transformation लानी है from you know in terms of weight loss, fat loss, inch loss, आपका energy level, stamina, आपका हेयर, स्किन, आपका अंदर से मतलब यू शुड लुक Right. ब्यूटीफुल, है ना. Correct. इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ कैमरे के आगे ब्यूटीफुल लग रहे हो. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो किसी के अंदर, True. एंड True. True. दैट इज हाउ इट वर्क्स. Yeah, and one thing that you said that these days social media पे अभी इतने सारे मतलब ठीक है everybody is you know has an account, इतने सारे न्यूट्रिशनिस्ट, इतने सारे डाइटिशियंस हैं and we see so many reels and so much guidance. तो अभी common man like us, we don't have any degree or we don't have any knowledge about this. How do I decide कि किसकी एडवाइस फॉलो करनी है, किसके अंडर करना है? एंड कभी कभी कुछ लोग तो बहुत ही मतलब ऐसे यू नो फटाक से क्विक प्लान, क्विक फिक्सेस देते हैं, फिर ऐसे मन तो बहुत करता है कि अच्छा करके देखे, बट फिर डर ही लगता है. दैट इज द Yeah. पॉइंट. ये जो क्विक फिक्सेस है ना, दे एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट. Right. True. देयर इज नो शॉर्टकट टू हेल्थ. Yeah. वहीं पे हम गलत जाते हैं. व्हेन समवन इज प्रॉमिसिंग यू कि ओके आपके रिजल्ट्स तो इतनी जल्दी आ जाएंगे, हाँ. यू नो ये शेक ले लो, ये पाउडर ले लो, हाँ. ये सप्लीमेंट्स ले लो एंड यू विल सी कि रिजल्ट्स आएंगे. ये देखो True. इसने 20 किलो कम कर लिया 2 महीने में, इसने इतना किलो कम कर लिया. व्हेन somebody is vouching for such kind of things, Yeah. stay away. Right. That is a you know red flag कि वहाँ पे आपको रुकना है कि see it's a simple line. You need to understand there is no shortcut to health. Yeah. You have to put efforts. आपका हर एक चीज में एफर्ट लगेगा, देन ओनली यू विल सी द रिजल्ट्स. एक प्रॉब्लम है पर इसमें एफर्ट देने का टाइम नहीं है. लाइक सो मेनी ऑफ अस वी आर सो बिजी एंड आई नो वी शुड प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ, आई नो दैट, बट मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो काम तो करना पड़ता है, तो वी डोंट नीड टाइम टू डू लाइक फॉर मी आई वॉन्ट टू डू, बट वो कहीं तो वो 2-3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं जो मैंने इसके लिए अलॉट किए होते हैं. सो कभी कभी मुझे लगता है इफ़ वी ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस तो एक भी चीज़ ढंग से नहीं होता है. व्हाट वुड यू एडवाइस टू पीपल लाइक मी परहैप्स जो थोड़े से ट्राइंग टू डू 10 different things at the same time and then That is why I said now it is a process. yeah So that is where like you know the people like me they do help you and हमारा काम वहीं पे शुरू होता है because especially I don't know about others but मेरे प्रोग्राम में it started as a process. yeah ठीक है, तो वो प्रोसेस में क्या है, आप धीरे 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 सब चेंजेस कर रहे हो आपके लाइफस्टाइल में, आपकी शेड्यूल में, रूटीन में, आपको कहाँ पे अपना वर्कआउट सेट करना है, आपको डाइट के लिए कैसे कैसे प्लानिंग करनी है. सो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट प्री प्लानिंग. yeah आज के इस सोशल मीडिया के हाँ. जनरेशन में वी नो एवरीथिंग. yeah ओके, जो नॉलेज मुझे है वो आपको भी है, राइट? वही नॉलेज थर्ड पर्सन को भी है, जो मेरे हाँ. ऑडियंस है सबको नॉलेज है, बट वो नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करना है एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इश्यूज. yeah आज के डेट में मेरे पास बहुत कम लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और उनको कोई हेल्थ इशू नहीं है.
हाँ Every single case, being the person is in 20s or 30s or 40s, सबको कोई ना कोई हेल्थ इशू है. मतलब 20s में जो गर्ल्स हैं उनको आजकल PCOD हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो रही है. गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, आई एम गेटिंग द केसेस ऑफ 14 years गर्ल्स, तो उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, 17 year old गर्ल्स. सो मतलब फर्स्ट तो इनिशियली तो बहुत मुझे शॉकिंग लगता था, बट अभी नाउ तो इट्स अ रूटीन. तो वो हाँ, दैट्स रियली सैड. मतलब वो कहाँ पे जा रही है दुनिया, मतलब मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि व्हाट पेरेंट्स आर डूइंग. मतलब उनको बेसिक्स ही उनके इतने खराब हैं. बच्चे का 10th है, बच्चे का 12th है, इसलिए दे आर नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, मतलब रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली क्रिएट हार्मोनल इम्बैलेंस. सबसे सिंपल चीज़ जो हम कर सकते हैं अपने घर में भी, अपने सोसाइटी में भी, अपने ऑफिस में भी, सब जगह, दैट इज योर वॉकिंग. सो वॉकिंग एनी टाइम, जब भी आपको टाइम मिले. इनफैक्ट आई वुड से कि यू नीड टू फाइंड आउट द रीजंस टू गेट अप फ्रॉम योर चेयर एंड वॉक. मतलब पानी पीना है तो चले गए, आपने कोई किसी को पेन देना है, कोई आपने किसी को कुछ पूछना है, रादर देन मैसेजिंग देम, गो टू योर फ्रेंड डायरेक्टली ना. वो 10 चेयर छोड़ के तो बैठा है, तो उठ के चले जाओ. स्टेयर्स है आपके ऑफिस में, स्टेयर्स से आप ऊपर नीचे हो सकते हो, रादर देन यूजिंग आपका लिफ्ट. देन यू कैन टेक योर कॉल्स. जो आपको लगता है कि आप वर्क फ्रॉम होम, सब कहते हैं कि हम लॉन्ग कॉल्स पे बैठे रहते हैं. कुछ कॉल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है. कीप वॉकिंग एट दैट टाइम. उस टाइम पे आप मैक्सिमम वॉक कर सकते हो. अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट्स का वॉक आप कर सकते हो, बिकॉज उतना ब्रेक तो आई थिंक सबको मिलता है ना. मेंटल ब्रेक भी मिलता है ना, लाइक एग्जैक्टली इमीडिएटली गोइंग बैक टू लाइक. सो बहुत सारी जगह है, बहुत सारे ऐसे टाइमिंग्स हैं जहाँ पे हम अपनी वॉक को बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हैं. पोस्ट योर डिनर आप वहाँ पे अपना वॉक कर सकते हैं. वॉकिंग एक्चुअली इज द बेस्ट एक्टिविटी, जिससे आपका कैलोरी बर्निंग भी होता है एंड यू एक्चुअली लूज योर फैट परसेंटेज ऑल्सो. सो आई ऑलवेज इंसिस्ट माई क्लाइंट्स की वॉक एनी टाइम यू फील लाइक कि आपको कुछ भी नीचे लेने जाना है, रादर देन डूइंग ब्लिंकिट और ज़ेप्टो कि चलो 10 मिनट में आ गया. यू शुड गो एंड बाय. तो इससे आप अपने मतलब वॉकिंग स्टेप्स जो है वो बढ़ा सकते हो. वॉकिंग इज अ परफेक्ट एक्सरसाइज. मैं और मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा वॉक करते थे पहले व्हेन वी वर डेटिंग. अभी भी हम लोग भी मेक इट अ पॉइंट कि डिनर के बाद वॉक करें. उतना एक थोड़ा क्वालिटी टाइम भी हो जाता है, लाइक यू सेड उतना थोड़ा बॉडी का मूवमेंट भी हो जाता है. बट मुझे इससे एक चीज़ याद आई. व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग तो बाहर का खाना अपने आप ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. नाउ यू हैव सीन माई हस्बैंड, यू हैव सीन मी. सो व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि हम दोनों बाहर का खा रहे हैं, वो मोटे नहीं हो रहे, मैं क्यों मोटी हो रही हूँ. So, इसके पीछे आई वुड से कि देयर इज लाइक एक तो हमारा नेचर ने हमें इस तरह से बनाया है कि जो मेल कॉम्पोजिशन है, बॉडी कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम फीमेल बॉडी कॉम्पोजिशन. तो यस एग्जैक्टली, बट वी कांट हेल्प इट. सो उनके अंदर ऑटोमेटिकली उनका जो बाय बर्थ मसल मास इज मोर है ना. तो जहाँ पे मसल मास मोर होगा उनका मेटाबॉलिज्म भी उतना ही फास्ट होगा, जिसकी वजह से अगर वो थोड़े से भी एफर्ट्स डालते हैं सो दे विल गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स. एंड इसी बात से मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जितने भी मेरे मेल क्लाइंट्स हैं दे गिव मी मैक्सिमम रिजल्ट्स, सक्सेसफुल रिजल्ट्स कंपैरेटिव टू माय फीमेल क्लाइंट. और सेकेंडली देखो, मतलब आप अगर डाइट प्लान लेते हो, ठीक है, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो, बट यू आर ओनली पुटिंग योर एफर्ट्स, है ना. बट अगर यही आपके कंपैरिजन में आपके हस्बैंड अगर डाइट प्लान लेते हैं, किसी के भी हस्बैंड घर में अगर मेल पार्टनर कोई भी डाइट प्लान लेता है, तो उसके पीछे उसकी मदर, उसकी वाइफ सब लगे हैं उसका खाना बनाने, उनको टाइम पे देने के लिए. तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि उनकी जो सक्सेस है वो उनकी सक्सेस अकेले की नहीं है. उसके पीछे उनकी वाइफ और मदर घर में कोई तो है जो उनको टाइम पे वो चीजें सब बना के दे रही हैं. एंड एवरीथिंग इज लाइक उनको, मतलब इंडिया में तो स्पेशली बना हुआ मिलता है, बट हमें वो नहीं मिलता है. एंड समहाउ कहीं ना कहीं हम फिर एज अ फीमेल घर में बैक सीट ले लेते हैं. अच्छा छोड़ दो, ये नहीं हुआ मेरे से, चलो ये छूट गया, जिसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. एंड थर्ड रीजन आई वुड से
especially in women we do have lots of stress issues Oh, and right. hormonal issues. So hormones की वजह से हमारा body it doesn't remain same throughout. राइट So every 15 days के बाद हमारा body change हो रहा है, हमारे hormones change हो रहे हैं, हाँ. but boys में ऐसा कुछ भी नहीं है, right? Right. So they don't have such kind of challenges. So that's why these are the reasons why they get so easily, all the success and all Yeah. the transformations. But ट्रू एंड स्ट्रेस का पॉइंट इज सो एक्यूरेट बिकॉज पहले मतलब सिर्फ आपको आपके जॉब का स्ट्रेस था, अभी आपको और भी लाइक सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेशली आफ्टर यू गेट मैरिड इट्स you gain one more family, so you gain a bunch of responsibilities which are at least in India Exactly. which are to be borne by exactly, female yeah, जो yeah. है. बट ये भी मैंने बहुत देखा है कि अब जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि सौम्या तुम्हारे स्ट्रेस लेवल इतने हाई हैं, दैट इज इंक्रीजिंग योर कॉर्टिसोल, तो उस वजह से तुम्हारा तो वेट गेन हो रहा है, तो कंट्रोल योर कॉर्टिसोल लेवल. मैं स्ट्रेस कैसे कम करूँ क्योंकि एवरीथिंग इज गिविंग मी स्ट्रेस. तो हाउ डू आई रिड्यूस द कॉर्टिसोल लेवल्स? सो कॉर्टिसोल देखो ये हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन है. स्ट्रेस हार्मोन जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तब रिलीज होता है एंड दैट इज समथिंग किसी एक लिमिट तक वो ठीक है. हाँ. क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं वी डू आवर थिंग्स फास्ट है ना, थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, फिनिश करने की कोशिश हाँ. कर रहे हैं, तो True, उस लेवल true. तक वो ठीक है. हाँ. बट staying in the same stressful situation for longer time that हाँ. is dangerous for our health. ओह So, अच्छा. कभी भी आप किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हो तो उसको 1-2 घंटे के लिए लो, ठीक है. Okay. और उसके बाद उसको कॉशियसली अपने आप को बोलो कि अभी मैं इसके बारे में नहीं सोचूं, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दिस नाउ ऑनवर्ड्स, एंड अभी मैं अपना ध्यान जो है इस काम से हटा के किसी और काम में लगा रही हूँ. ट्राई टू इंडल्ज योर सेल्फ इन सम Right. एक्टिविटी, इन सम एक्सरसाइज या कोई और किसी काम में, या उस सिचुएशन से बाहर चले जाओ, उस एटमोसफियर Right. से बाहर चले जाओ. अगर आप घर के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, थोड़ी देर घर से बाहर चले जाओ, सो दैट विल हेल्प यू टू ब्रिंग डाउन योर स्ट्रेस लेवल्स. राइट. सो लॉन्ग टर्म जो मतलब हम घंटों घंटों उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रहे हैं, हम दिन रात उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. दैट Yeah. शुड नॉट बी द केस. Okay. Then it impacts your hormones, then it impacts your weight and all those stuff. Right. So that you need to understand कि cortisol हमारी बॉडी में बनेगा. We cannot control कि हम इसको बिल्कुल ही बंद कर दें, जीरो कर Right. दें, वैसा नहीं होगा. हाँ. But we can bring it to the normal after Okay. certain period of time. So एक ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि स्ट्रेस आया, हाँ. cortisol बढ़ा, again it should come down. राइट. Right, and Okay. then it is going like this again. कुछ stressful situation आई, हाँ. then it increases. But आज के टाइम पे हो क्या रहा है ना, cortisol is like this. It is बढ़ता ही जा रहा है. increasing. Oh. उसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है, वो डाउन नहीं हो रहा है. So Okay. जब वो डाउन नहीं होता है, that is the reason कि why we are facing so many of hormonal imbalancing Right. cases, PCOD cases, thyroid cases, diabetes. These all are hormonal imbalancing cases. And are there any ways to reduce the cortisol, like something I can do in my day-to-day life, जिससे Yes, थोड़ा yes. ग्राफ नीचे? सो उसके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टू डू थिंग है कि आप अपना एक मॉर्निंग रेज्यूमे सेट करें. हाँ. आप अपना मॉर्निंग का रूटीन जो है वो सनराइज के साथ शुरू करें. ओके. सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू ब्रिंग डाउन योर कॉर्टिसोल लेवल्स, राइट. और उसके लिए आपको प्रीवियस नाइट का जो आपका स्लीप है दैट शुड बी ऑन टाइम. राइट. So I always ask my clients to prioritize the sleep. It is like a medicine for you. या. जो चीज़ें आप जितना भी आप अपने गोल सेट कर रहे हो, जो चीज़ें ढूंढ रहे हो ना कि मुझे ये हाँ. सप्लीमेंट से ये मिल जाए, वेट लॉस मिल जाए, फैट लॉस मिल जाए, मुझे ब्यूटीफुल स्किन मिल जाए, मेरा Right. ग्लो वापस आ जाए, मेरे हेयर शाइन करें, एवरी सिंगल थिंग, इवन आपका मसल मास गेन हो जाए, मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी हो, स्ट्रेंथ हो, सब आपको मिलेगा. बट एवरीथिंग यू विल गेट ड्यूरिंग योर स्लीप टाइम. राइट. सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम. जब हम लेट सोते हैं, नेक्स्ट डे लेट उठते हैं, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है मॉर्निंग में इतना हाई रहता है कि हाँ. आप उसी हाई कॉर्टिसोल लेवल में ही अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो. Right. आप उसको स्लो डाउन ही नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव टाइम. 10 True. बजे आप उठ रहे हो, 10 बजे आपकी कॉल है या. ऑफिस की, राइट. या. सो कहाँ आपने अपने Correct. आपको टाइम दिया उस कॉर्टिसोल को स्लो डाउन करने True. के लिए.
Yes, So yes. that is how you can bring it down. You need to make a morning resume. Yeah. जल्दी उठिए, अपने बॉडी के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा उसको फिजिकल एक्सरसाइज दीजिए, जिनसे कि आपका कोर्टिसोल लेवल डेफिनेटली डाउन Right. जाएगा. True. That is actually a very good advice. And अगर रात को टाइम से सोना स्टार्ट कर दिया तो मुझे लगता है मेरी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी. 100% सॉल्व हो जाएगी. That is my Yeah. experience. True. एक ये भी मुझे लगता है कि जब जैसे बहुत बार लाइक व्हेन वी वेक अप लेट ना तो हमारा फेस बहुत ऐसा पुफी और ऐसा सोलन सा हो जाता है. सो मुझे लगता है इफ वी वेक अप अर्ली परहैप्स शायद वो भी Exactly, yes, Right. it will happen. अभी उसके पीछे भी हर चीज़ के पीछे साइंस है. देखो Right. अगर आपने साइंस को समझ लिया, so you will actually follow all the routine and all Yeah. the guidelines. True. Basically जो रात का हमारा टाइम है, वहाँ पे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करती है. Okay. ठीक है, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, आपका लिवर है, पेंक्रियाज है, किडनीज हैं, दे ऑल आर लाइक इट फिल्टर्स इन द बॉडी. Okay. सो दिन भर में हम इतना कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, हवा से, सब चीज़ों से हमारे अंदर टॉक्सिन्स जा रहे हैं. ठीक है, अभी बॉडी क्या करती है, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं. ये जो प्रोसेस है ये रात में होता है जब आप Okay. टाइम पे सोते हैं. Okay. ठीक है, और अगर आपका वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ, लेट्स से यू आर स्लीपिंग एट 1-2 एवरी सिंगल डे, योर बॉडी इज इन दैट मोड कि कब तू सोएगा और कब मैं हाँ. डिटॉक्सिफिकेशन करूंगी भाई. Right. तो तुम सो नहीं रहे हो, डिटॉक्सिफिकेशन हो नहीं रहा, टॉक्सिन्स अंदर इकट्ठे हो रहे हैं. Right. So these are the toxins which causes lots of puffiness when you wake up in the morning. Okay. पफिनेस से मुझे याद आया अभी रिसेंटली वी सॉ इन न्यूज़ विद्या बालन लॉस्ट सो मच वेट फॉर भूल भुलैया 3. आई मीन वी ऑल सॉ द एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन एंड शी सेड दैट उनको ये डिटेक्ट हुआ था कि उनका बॉडी वेट जो एक्स्ट्रा जो भी था वो दैट वाज इन्फ्लेमेशन. Yes. सो हाउ डू वी नॉर्मल पीपल आइडेंटिफाई कि भाई अभी ये दिस इज मोटापा और दिस इज इन्फ्लेमेशन लाइक कैसे पता चलेगा हमें? So देखो, inflammation is a buzzword these days on social media. I don't know कितने लोगों को इसका मतलब मालूम है, but everyone is like anti-inflammatory diet दे दो, inflammation हो गया है हमें. पहले देख तो लो inflammation है भी है या हाँ. नहीं है. So inflammation के देखो बहुत सारे symptoms हैं. The major ones are obviously the swelling and the puffiness in the body. ठीक है, Right. अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ लास्ट 4 months से मेरा फेस बहुत ज़्यादा पफी हो गया है, ब्रॉड हो गया है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो गई है, काइंड ऑफ. देन सेकंड इज योर गट हेल्थ. Okay. अगर आपका गट हेल्थ डिस्टर्ब है, अगर आपके डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं जो पहले नहीं हो रहे थे, हाँ. अगर आपका मॉर्निंग में यू आर गेटिंग कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी पूरे दिन रहता है, ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन. सो Okay. इन्फ्लामेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स. इट इज Okay. नॉट वन थिंग. ओके, सो जब हमारे पास कोई आता है, हम उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं, तो वो जो सिम्टम्स हमें क्लाइंट बताता है या पेशेंट बताता है, उससे बेसिस पे हम बता पाते हैं कि इन्फ्लामेशन है या फिर नहीं है. Okay. ये सो इट्स अगेन कि आप कैसे स्टडी कर रहे हो, हाँ. केस स्टडी कैसे कर रहे हो, उनके बारे में आपको पूरा डिटेल लेना होता है, उसी के बेसिस पे हम बता पाते हैं. Okay. बट अगर नॉर्मल, अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आई एम गेटिंग लेथार्जिक, मेरा एनर्जी लेवल हाँ. डाउन जा रहा है और मुझे सारा दिन बस ऐसे पड़े रहना है काउच पे, कुछ हाँ. नहीं करने का मन हो Yes. रहा है, भले ही हमें सब नॉलेज है, हाँ. बट अंदर से वो एनर्जी ही नहीं है. हाँ. वी डोंट फील लाइक गेटिंग अप एंड इवन गेटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम किचन. Yeah. तो अगर इतना लेवल डाउन हो गया है तो ये इन्फ्लामेशन है. Okay. यस, डिप्रेशन नहीं है शायद. दैट इज अ कंप्लीट, आई वुड से कि वो एक डिफरेंट टॉपिक है, आई वुड नॉट डिस्कस हियर. बट हाँ, सी, Yeah. इन ह्यूमन बॉडी एवरी सिंगल थिंग इज इंटररेलेटेड. Connected. ठीक है ना. तो अगर ये सब चीजें हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट फील हैप्पी, यू विल हाँ. फील सैड ऑल द टाइम. तो वो आपका मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट होगा उससे True, फॉर true, श्योर. true. Happens, yes. I can totally relate. तुमने पॉडकास्ट का नाम बहुत मस्त रखा है, चाय टी. हाँ, योर फेवरेट टी. या एक्चुअली मुझे बचपन में तो नहीं, कॉलेज में जब से चाय पीना शुरू किया मुझे बहुत पसंद है. एंड कि वो वैसे ही होगा. वंस व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज दिस कॉलीग ऑफ माइन एंड मेरी टीम में ना लेडीज बहुत ज़्यादा थी. हम सब थोड़ा सा वेट लॉस चलता रहता था, सम ऑफ द अदर थिंग.
एंड शी सजेस्टेड टू मी कि सौम्या ये ना डिटॉक्स वाटर है, मैं पी रही हूँ, तू भी बना और पिया, और मैंने बहुत मैजिकली वेट लूज़ किया है। तो मुझे थोड़ा डाउटफुल अब क्या, एंड आई वॉज न्यू टू द टीम, ऐसे मना एकदम से करूँ कि नहीं मैं नहीं पीती, अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा ठीक है भाई दे दे रेसिपी बना लेंगे। एंड इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अजवाइन थी, जीरा, यू नो सौंफ, लॉट्स ऑफ थिंग्स वर इन देयर, बॉईल करो पियो। आई हैड दैट, माई हस्बैंड मना किया था उन्होंने कि कुछ मत ट्राई कर, ऐसे मैंने कब किया स्टार्ट, एंड आई डोंट नो डिटॉक्स हुआ कि नहीं, बट पेट जरूर गड़बड़ उससे हो गया। आई थिंक उससे भी वेट लॉस वन ऑफ द अदर वेट वाज लॉस्ट, बट या तो सबसे पहले तो मैं यही कहनी चाहूंगी कि हमारे पास कोई भी एक मैजिकल ड्रिंक नहीं है। हाँ। देयर इज नो मैजिक ड्रिंक कि जिससे वेट लॉस हो जाएगा। मैं भी अपने क्लाइंट्स को डिटॉक्स वाटर्स देती हूँ, Right. बट आई ऑलवेज टेल देम कि इससे वेट लॉस नहीं है, ये सिर्फ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। Right. वट एवर यू आर ईटिंग इट शुड गेट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, है ना? क्योंकि अगर आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, अगर आपको ब्लोटिंग हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो वेट लॉस कैसे होगा, राइट? सो दीज डिटॉक्स वाटर्स आर जस्ट टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। एंड सेकेंड थिंग इज कि कोई भी रैंडम डिटॉक्स वाटर किसी ने बताया, कहीं सोशल मीडिया पे रील देख लिया और हम उठा के बना के पी रहे हैं, तो दैट इज आई मस्ट से कि इट्स अ बिग वार्निंग कि किसी को भी ऐसे रैंडमली कोई डिटॉक्स वाटर नहीं पीना चाहिए। बिकॉज जब मैं किसी को डिटॉक्स वाटर देती हूँ, आई ऑलवेज सी बॉडी टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसको आयुर्वेदिकली उसको मैं असेस करती हूँ, उसके बेसिस पे उनको डिटॉक्स वाटर दिया जाता है कि इनकी क्या बॉडी टाइप है, क्या प्रकृति है और उनको कौन सा डिटॉक्स वाटर देना है, देन ओनली इट विल वर्क। अगर आप अपनी बॉडी टाइप से ऑपोजिट डिटॉक्स वाटर ले रहे हो, सो यू आर गोइंग टू लैंड अप इन हॉस्पिटल। मैंने sure. कुछ भी लिया होगा शायद, आई वाज हाँ. नॉट इन अ, बिकॉज व्हेन यू आर न्यू इन एन ऑफिस तो थोड़ा सा Exactly. एकदम ऐसे मना करके थोड़ा Yeah. अच्छा नहीं लगता। Yeah. One, like this one time I used to have eggs in breakfast ना, so I was having eggs and मेरे सामने एक coworker बैठी थी, she was having samosa, it was 8 AM in the morning, मैं अपना उबले अंडे खा रही हूँ चुपचाप, and all of a sudden she goes like, you तुम सुबह सुबह अंडे कैसे खा सकती हो, and like जैसे तुम सुबह सुबह समोसा खा रही हो, मैंने मन में बोला मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे ही बस मतलब थोड़ा प्रोटीन एंड आई वाज सो मतलब शी वाज जजिंग मी फॉर हैविंग एग्स इन द मॉर्निंग, इट मेड मी फील सो कॉन्शियस। एंड घर पे भी मतलब जैसे रिश्तेदार बताई देते हैं कि ये डाइट फॉलो कर रही है, देन एवरीबडी स्टार्ट्स सेइंग कि फलाना की बेटी ने तो यहाँ से किया था, ये किया था, सम पीपल इवन ये कर लो वो कर लो। सो सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है, वंस वी डिस्क्लोज वी आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ डाइट, हाउ डू वी नेविगेट थ्रू दैट? सो सौम्या, इसमें एक चीज़ ये है कि जब भी आप कोई अपना इस तरह का कोई डाइट स्टार्ट करते हो, फिटनेस जर्नी स्टार्ट हाँ. करते हो, देखो बहुत सारे आपको रैंडम एडवाइसेस आएंगे जगह जगह से, है ना? यू शुड डू दैट, यू शुड नॉट डू दैट, ये तो ऐसे हो जाएगा, वो तो वैसे हो जाएगा। बट व्हेन यू आर ऑन सम पर्टिकुलर जर्नी, यू नीड टू ट्रस्ट दैट पाथ, ठीक है? एंड सेकेंडली यू शुड हैव दैट नॉलेज बिहाइंड व्हाट यू आर फॉलोइंग, ट्रू, राइट? यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट। रैंडमली कुछ भी फॉलो मत करो, किसी ने पाउडर बता दिया, किसी ने ये शेक बता दिया, किसी ने वो सप्लीमेंट बता दिया, हम मेडिसिन मांग रहे हैं लोग कि कैसे पतले हो जाए, अच्छा इससे 7 days में ये हो जाएगा। डोंट फॉल फॉर दैट, ओके? when you know what you are doing, it is correct, it is actually scientific, it is actually logical and you are doing it, like उसको आप अच्छे से follow कर रहे हो, don't listen to anyone. Okay. People will speak initially, right? Later on वही लोग आपसे पूछेंगे कैसे किया, अरे ये चमत्कार कैसे हुआ, Right. so that time will come. But you have to be very patient with your journey. ये journey time लेती है, but it is worth giving your efforts, time and everything. And one message I really want to give to the audience कि आप बहुत जो fast results के लिए आप भागते हो फैट डाइट्स के पीछे, दैट इज समथिंग विच इज़ रियली रॉन्ग। आप एक्चुअल में अपनी हेल्थ बिगाड़ रहे हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो वो शेक्स लेके, आई डोंट वांट टू नेम दैट, बट उनको एक्चुअल में थायराइड, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीजेज हो रहे हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं। एंड दिस इज़ सो सैड कि हमारी सोसाइटी में ये सब चीज़ें चल रही हैं और कोई सही रास्ता नहीं पकड़ना चाहता। There is a lady I know who took that very same shake you are talking about, weight
हुआ होगा कम, उनके बाल चले गए, पता है आपको. She lost her hair instead, and I felt, and she, because once I think enroll into it, this sort of try to, you know, make you buy it also, ऐसा कुछ उनका pyramid scheme type है. She was selling it to me so hard, and मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए. 3 महीने बाद देखा अगली के बाल ही नहीं, मैंने कहा oh god. अच्छा हुआ नहीं लिया. But scary things out there. Yeah. So, And there is no need to play with your body. You can absolutely. actually follow very simple things and you will get great results out of it. Right. मेरे सारे पेशेंट्स खूब अच्छे से खाते पीते हाँ. डाइट फॉलो करते हैं और इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, एंड दे आर सो हैप्पी एंड दे फॉलो दैट पाथ फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, एंड दैट Yeah. इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. Absolutely. So I think I have asked you a lot of questions today. I'm sure audience will still have few more questions, and I'm pretty sure which they will want to ask you. So we are going to drop your socials in our caption and in the comments. And if you have any questions, please do reach out to Health Secrets by Shivani on Instagram, and she will answer all of your queries. Okay, so that's it. Thank you so much. Thank you for joining us, Thank you Shivani. so much, Soumya. I love It was a lovely Yeah. session. Yeah.